एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट सर्विस, जो कि नियर बस स्टैंड इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। WEICS आज के टाइम में एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ पर आईलेट्स, PT, स्टडी वीजा के कोर्स करवाए जा रहे हैं। यहाँ का स्टाफ बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड कर रहा है और बच्चों की हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाता है। राजेश सैनी और संदीप नैन जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सहूलतें दे रहे हैं और स्टाफ को भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने वर्ल्ड एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट सर्विस का विशेष दौरा किया। पेशा पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। वर्ल्ड एजुकेशन इस्माइलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਟ ਵੋਇਸ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਡੈਮੋ ਲਿਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੀਚਰਸ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾइल जिदा ਆਪਾਂ सिक्योरिटी की गल करिए सारी वधिया सिक्योरिटी। मैडम, आईलेट्स के साथ आप केवल इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बच्चों में। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पहले तो आप बताएं कि आपके कितने बैंड थे और कैसे आपने इस सेंटर को चूज किया? Well, I got overall 6.5 bands and also I have 3 months experience, but I just passed out my senior secondary education from government school and I experienced from Kuber overseas, which is near my hometown. I chose this center because my friend also known the owner, so I chose this center. Near about 10 days I will come from. And how you are teaching the students, as all your students are satisfied by you कि that madam is really good? कैसे मतलब आपने उनके मन में ये कैसे भावना पैदा की है कि वो ये कहने पर मजबूर हों कि हमारे मैडम है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कैसी पढ़ाई कराते हैं, कैसे आप कंसंट्रेशन रखते हैं? सर, मैं इनको अभी स्पोकन करवा रही हूँ और इनको सेंटेंसेस वगैरह से शुरुआत की है इनकी, बिकॉज इनका अभी लेवल बहुत लो था, तो इनको मैंने पहले सेंटेंसेस बनाने सिखाए हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को ग्रामर कराते हैं। इनको अभी इंग्लिश में इतना फास्ट नहीं बोल पाते, तो मैंने इनको ऐसे प्रॉपर किया है कि अभी अपनी स्पीकिंग भी दे सकते हैं, आप इनसे स्पीकिंग भी लेके देख सकते हो। मतलब हम ये समझे कि जैसे ABC से शुरू करते हैं, बच्चों को आप कहते हो कि एक्सपीरियंस करो, आप बोलने की कोशिश करो, चाहे हेजिटेशन है जो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे आप बोलते हो कि घर पे ही जाकर कंजर्वेशन करो, आप में दोस्तों में बोलो। हाँ जी, स्पीकिंग के लिए सबसे पहला पार्ट तो यही होता है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं लो करना होता, नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं चलती वहाँ पे। तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप मिरर के सामने रोज प्रैक्टिस किया करो बोलने की, आप थोड़ा बोलो चाहे इंग्लिश में, पर इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो, तो इनकी हेजिटेशन भी दूर होगी और ये मेरे सामने भी बहुत अच्छा देते हैं अपनी स्पीच वगैरह, जो भी मैं देखती हूँ उनसे। और यहाँ के डायरेक्टर हैं जो जिनका माइंड है कि हमने विद्या का दान देना है, और वो हमेशा आपको यही गाइड करते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमने जो बच्चा हमारे पास इस सेंटर में आ गया उसकी हमारी पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो 4 बार क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 10 बार पूछे। अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसकी आप एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। हमारा ये सेंटर 4 o'clock तक ओपन रहता है और जिसको एक्स्ट्रा क्लास की नीड होती है हम उसको एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं, और जिनके डाउट्स है वो ये तो हमारी जिम्मेवारी है उनके डाउट्स क्लियर करने हैं। इनका जो भी डाउट होता है ये हमसे पूछ सकते हैं जब भी हम फ्री बैठे होते हैं। How you are feeling, Mr. Randeep here? Myself Hardeep, I am from Ramajra and मैं आज डमी क्लास लेना है सिवरा। यहाँ पे डमी क्लास लेने आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कंटिन्यू क्लास लाऊंगा आगे।
दिखाऊंगा। और आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हो? हाँ जी। कितना ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ और यहाँ पे PT ਦਾ environment कैसा कैसा है? एनवायरनमेंट? यहाँ पर सर बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर जो टीचर है वो बहुत एक्सपर्ट है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे टीचर है यहाँ? यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर हैं और हर एक बात अच्छे से समझाई जाती है अगर बच्चा बार बार पूछ लिखता है। बार बार भी बता देते हैं, मतलब बोर नहीं होते ऐसे, हाँ, मजे नहीं होते इस कोई बात। बच्चा बोर नहीं होता। कैसे लग रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। अकेली पढ़ाई बढ़िया लग रही है कि उसके साथ साथ जैसे प्रैक्टिकली आप लोग कंप्यूटर पे आए हो? और अकेला यही नहीं है कि हम लोग आइलेट्स यहाँ शो कर रहे हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ आ रही है। यस सर बहुत बढ़िया। बेटा कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छे लग रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ जैसे आना जाना आपको होता है और धीरे धीरे जैसे पहले इंग्लिश के अखबार होते थे तो उसमें आंसी पासे कर लेते थे, अब धीरे धीरे दिल करता ना पढ़े। हाँ जी करता है पढ़े और पढ़ने भी लग गए हैं। और इस तरह से जैसे कमेंट्री सुननी है, इंग्लिश की कमेंट्री है, तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप समझाने लगे हैं। आने लग गई हैं सर, अब तो बहुत अच्छे से आ रही हैं जब से हमने यहाँ से ज्वाइन किया है। बेटा कैसा लग रहा है आपको पढ़ कर यहाँ पर? I am feeling very nice. Training is very good. Teachers also very good. एंड इन विच कंट्री यू आर विलिंग टू गो? Depends on the bench or marks. बट योर But the teachers are for बट योर चॉइस इज टू विच कंट्री? किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं? Canada. कनाडा। जी. और जैसे यहाँ पढ़ाई का स्टाइल है, टीचर्स हैं, कम्प्लीमेंट्री है, बहुत बढ़िया लगा पहला दिन। Yeah. Very nice. सर अब आप एक नेटवर्क दे रहे हैं स्टूडेंट्स को पीटी के तौर के ऊपर, क्या है पीटी और कैसे स्टूडेंट्स को इसका आज हर स्टूडेंट के माइंड में जैसे पहले आइलेट्स बसा हुआ था, धीरे धीरे पीटी बचने लग गया है, क्या कहने? क्योंकि सर एक तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया और दूसरा है ये फास्ट प्रोसेस है। लाइक आप 3 दिन में ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। आप एक दिन पहले अपना एग्जाम फिल कर सकते हो, अगले दिन आपका रिजल्ट आ गया और शाम को ही अगले दिन आपका एग्जाम होगा, शाम को आपका रिजल्ट आ गया, अगले दिन आप सुबह अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हो। तो ये फास्ट प्रोसेस है। अब आइल्स में आपको 12 दिन पहले तो अपना एग्जाम बुक करो, फिर 3 दिन में एग्जाम दो, फिर आपका 10 से 12 डेज में आपका रिजल्ट आएगा और फिर 4 to 5 डेज में आपकी TRF आएगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो 1 महीने का प्रोसेस है, लेकिन पीटी में आपको सिर्फ 3 दिन का ही प्रोसेस है जैसे आप एग्जाम फिल करते हो। तो जैसे कुछ बच्चों को नर्वसनेस फील होती है आइल्स में 1-to-1 स्पीकिंग देते हुए, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो बच्चों को थोड़ा रिलैक्स फील होते हैं एग्जाम में, उन्हें कोई नर्वसनेस नहीं होती। और जो नेटवर्क WEICS दे रहा है, हाँ जी, और आप लंबे समय से इनके साथ अटैच हो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में सर ये बहुत अच्छा सेंटर है। लाइक हमें यहाँ पे कोई ये नहीं हो कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, बहुत फैमिलियर है यहाँ से, जैसे सभी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, तो अच्छा सेंटर है। और आपके जो सर है वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए पूरी नॉलेज थी, पूरी पढ़ाई उन्होंने की हुई है। ये नहीं है कि कोई और बिजनेस वाला बंदा है जो बिजनेस के तौर पे वो भी विद्या का दान देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। यस सर बिल्कुल, क्योंकि वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, फिर यहाँ पे आकर उन्होंने अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, बिल्कुल वीज़ा कंसल्टेंसी भी, सब कुछ बढ़िया सिस्टम है। मतलब उनको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चे जाकर वहाँ क्या फेस करते हैं और वो उनके लिए भी आपको बच्चों को रेडी करते हैं। यस सर, वो बच्चों को अच्छी गाइडेंस देते हैं। लाइक आप वहाँ पे जाके ये प्रोग्राम चूज कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप इस सिटी से दूसरी सिटी मूव हो सकते हो, और यहाँ से फिर आप ये नहीं है कि यहाँ से हमारा काम है सिर्फ बाहर भेजना, वहाँ पे जाके भी बच्चों की हेल्प करते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ को होता है कि कॉलेज चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, या फिर PR में हेल्प करनी है, या फिर आगे अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो हर एक चीज़ में आपको हेल्प करते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं WIECS, एक ऐसा इमिग्रेशन और आइलेट का सेंटर जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं आपका हमारे असमैलाबाद में। सर आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, नमस्कार टू ऑल क्लाइंट एंड कस्टमर्स हु आर लुकिंग माय चैनल और स्पीकिंग टू ऑन दिस चैनल। सर अगर हम बात करें कब से आपने इस फील्ड में है, और आज वर्ल्ड एजुकेशन का जो नाम है वो पूरी तरह से केवल इस एरिया में नहीं, अगर जैसे आपने लांडवा में भी अब खोल रखा है, और सारा धीरे धीरे लोग फ्रेंचाइजी के लिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे आपने ये नाम बनाया इतने थोड़े समय? हमारा इस फील्ड के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस है और हम पिछले 10 साल से सर्विस दे रहे हैं, लाइक आइलेट्स की, PT की और स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, और हम इसके साथ साथ करियर काउंसलिंग भी दे रहे हैं बच्चे को भी, किस आपकी जो स्टडी बैकग्राउंड क्या है और किस रिलेटेड कोर्स में आपको जाना चाहिए और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है, तो हम इस तरह की से भी सारी सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को। 10 साल का लंबा एक्सपीरियंस जिसमें आपके बहुत सारे बच्चे बाहर जा चुके हैं, और आप एक
बाहर भेजने का काम ही नहीं कर रहे, अकेला स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा ही नहीं दे रहे, उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग उन लोगों को, क्योंकि आप खुद ऑस्ट्रेलिया में रह कर आए हो और आपने हर चीज़ अपने ऊपर हंडाई है, क्या ये भी फ़र्क पड़ता है कि जिसके साथ आप लोगों को बढ़िया तरीके से गाइड कर सकते? Actually, I already study in Australia like before 5-7 years, and I also has experience about the Australian life. So I know about the I know about the hard works of the every student. So I guide to properly to every student. मतलब जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं कि वो स्टूडेंट को फेस ना हो, उसके लिए आप नेटवर्क बनाते हैं, केवल उनको स्टडी में नहीं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस किस तरह का उनको वहाँ जाकर कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी रखनी है, कैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में रहना है। यानी कि हम हर एक बच्चे को, जो भी हमारे बच्चे का, किसी भी बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा आता है, हम उनको बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं और उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग सारी उसको उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब बताते हैं भी उसको किस तरह का वहाँ पे स्ट्रगलिंग होगी। और हम बच्चों को इसके साथ साथ अकेला हम स्टडी वीज़ा ही नहीं, उसकी हर हेल्प करते हैं, लाइक उसको अकोमोडेशन दिवाना भी, किस टाइप की अकोमोडेशन वहाँ पे एक्सेप्ट करनी है और क्या क्या उसमें लाइक उसकी जो फाइंड आउट में भी हम उसकी हेल्प करते हैं। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनकी हम उनको रेफरेंस दे के उसके बिहाफ पे, वो रेफरेंस के बिहाफ पे बच्चों के साथ कांटेक्ट करते हैं और वो बच्चे उनकी जो फाइंड आउट करने में और उनकी अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। WEICS जो एक नाम बन चुका है, अब लोग फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं, आपसे कंटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी हरियाणा में या पंजाब में भी आपकी ये जो आपने एक नेटवर्क शुरू किया, 10 साल आपको हो गए, अगर कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए बोले तो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकता है? यस, वो कभी भी कांटेक्ट कर सकता है फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग। हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, जिस तरह की भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, लाइक काउंसलिंग के रिगार्डिंग और स्टडी वीज़े की इंक्वायरी के रिगार्डिंग और करियर, बच्चे के फ्यूचर के रिगार्डिंग और करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम हर तरह की हेल्प करेंगे। सर आजकल जैसे यूके जो बहुत सारा ओपन हुआ है, क्या आप यूके भी कर रहे हैं? जी, हम ऑब्वियसली हम यूके कर रहे हैं। हम यूके की प्रोफाइल वही उठा रहे हैं जो बच्चों के पास 5.5 बैंड और 6 बैंड इन आइलेट्स और रिसेंटली पास आउट। सर आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि ये हरियाणा के हम उस डिवीज़न में बैठे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी भी है और लोग जो है जाना चाहते हैं बाहर, क्योंकि खेती बाड़ी के साथ अब थोड़ा सा गुजारे होने मुश्किल हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे दर्शकों को गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है और बच्चे जो यंग होते हैं, तेज़ उनकी एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी की वे है, और मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ भी अगर बच्चों का यहाँ पे उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो हम उनका फ्यूचर के लिए पूरी सपोर्ट करेंगे। लाइक वो अपनी आइलेट्स करके या पीटी करके वो ओवरसीज स्टडी कर सकते हैं और उनको वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप भी हर एक बच्चे को पता है यहाँ के लिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट जॉब को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है किसी भी फील्ड के अंदर जॉब के लिए। और अगर हम ओवरसीज़ किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, तो हमें उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और लाइक इन जैसे इंडिया में है, इंडिया में जो कोटा सिस्टम है और दूसरी कंट्री के अंदर ऐसा कोई कोटा सिस्टम नहीं है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।